Students, welcome you all in today's class. In our previous lecture, we covered about the internal memory, and in internal memory, we covered specifically RAM portion, right? So RAM, random access memory, we already study about it, and the types are in front of your screen. First was DRAM, second was SRAM, then combination of it as DRAM, and finally which RAM we are using nowadays. This is DDR, double data rate memory. But today we will focus on its second part, that is second part of internal memory, that is ROM, read only memory. It is a type of memory from which information can only be read, whereas in RAM, information can be read from and also written to. What it means, beta? It means uh, as RAM was a temporary memory. We all know that, right now. But ROM is a permanent memory. We will learn about it in this paragraph later on. But it is a type of memory from which information can only be read. Uh, its name suggests us the meaning of it, that read only memory means we can only read this memory, we can't make changes in it, right? But in RAM we can read and write both. That's why it is a RAM, random access memory. But in read only memory we can only read the data, right beta? It is a non-volatile memory as it stores information permanently. In RAM, everything was temporary, but in ROM, whatever data, whatever instructions or command stored inside it, it always be stored in it. Data stored in ROM can neither be modified nor removed. इसके अंदर जो भी डाटा स्टोर हो जाता है उसको ना तो आप रिमूव कर सकते हैं और ना ही उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं. ये सामने आपके सामने जो एक फोटो लगी हुई है, दैट इज ऑफ रोम. आई शो यू इन school days, during school days, when I bring a motherboard, complete motherboard in your class. I hope you remind that. The primary use of ROM is during the booting process. What is the use of ROM? Look, students, whenever you switch on your computer, your computer starts on the basis of some files, some boot files. Boot means boot startup loader program. It stores boot start loader program means कि इसके अंदर वो फाइल्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करती हैं. अगर वो फाइल्स इसमें नहीं होंगी तो योर कंप्यूटर विल नेवर बी स्टार्टेड, राइट? This is initial program used to start a computer when power is turned on. जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले यही वो फाइलें होती हैं रोम के अंदर जो कंप्यूटर को स्टार्ट कर पाती हैं. और अगर आप कंप्यूटर को ऑफ भी कर देते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी फर्क इसका नहीं पड़ता है, क्योंकि डाटा इसमें परमानेंटली स्टोर्ड है. वो बार बार आपको डिलीट ना तो वो डिलीट होगा, ना ही आपको बार बार इसकी टेंशन लेने की जरूरत है कि इफ आई स्विच ऑफ द कंप्यूटर डाटा कैन बी रिमूव्ड. नो, इट इज परमानेंट स्टोरेज इनटू योर internal memory, that is ROM. Example of it, an audio video disc resembles a ROM. Once the songs are burned on a CD, the disc contents cannot be changed. What it mean? It mean कि ROM का एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे आपकी ऑडियो वीडियो सीडी होती है बेटा. Once we stored into it, मान लो एक मूवी आपने स्टोर कर दी, तो we can't change the scene of movie or any character of movie or any sound of movie, right ना? एक बार जो स्टोर हो गया वो हो गया. After that, now type of ROM. As we have so many types of RAM, in the same way we have so many types of ROM. Now this portion is very much interesting.
Listen carefully. Number one, PROM, programmable read-only memory. It is a normal ROM. When ROM is invented, that PROM introduced, right? What it means? It means it is programmable. Means the content can be programmed using a special device known as PROM programmer. कि इस रोम के अंदर के प्रोग्राम को हम चेंज कर सकते हैं कब? अगर हमारे पास PROM नाम से एक प्रोग्रामर है, ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड OTP, वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम. लेकिन ये प्रोग्राम कब बनता है? whenever you install your ROM into the computer. और उस वक्त जो इंजीनियर्स होते हैं, PROM प्रोग्रामर्स होते हैं बेटा, दे स्टोर सम इंस्ट्रक्शंस इनटू द ROM ऑन परमानेंट बेसिस. ये उसी वक्त हो सकता है, लेकिन इसको उसके बाद इसको मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. यानी एक बार हमने इसको प्रोग्राम कर दिया, उसके बाद ये चेंज नहीं होगा, राइट. सो PROM प्रोवाइड्स अ फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव अप्रोच फॉर स्टोरिंग. मीन्स कि इसमें जो डाटा स्टोर हो गया है दैट कैन बी चेंज. दैट्स व्हाई इट्स स्पीड ऑलवेज फास्टर. ना इसमें कुछ ऐड हो सकता है, ना इसमें से कुछ कम हो सकता है, तो इसकी स्पीड हमेशा ही अच्छी रहती है. एंड लेस एक्सपेंसिव अप्रोच फॉर स्टोरिंग, और ये ज्यादा महंगा भी नहीं होता है, राइट. आफ्टर दैट ये फील होने लगा कि व्हेन वी कांट चेंज इनटू इट, देन व्हाट इज द यूज ऑफ इट. यानी एक बार आपने कोई चीज ले ली, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं विद द स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी, यू कांट चेंज इट. तो उस वक्त हमारे दिमाग में एक बात आई कि व्हाई नॉट वी प्रिपेयर अ रोम इन विच वी कैन मेक चेंजेस, है ना. तो कैसे होगा? देन वी लॉन्च्ड EPROM. मीन्स E ऐड हो गया. व्हाट इज E? E स्टैंड्स फॉर इरेजेबल. E स्टैंड्स फॉर इरेजेबल. इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. यानी जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी थी, अब हम उसको इरेज कर सकते थे. वी कैन इरेज, वी कैन डिलीट, राइट. इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड रैपिडली विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर. लेकिन इसमें हर आदमी इसको नहीं कर सकता था बेटा. इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, जिसके अंदर रैम को लगा के वी कैन मेक चेंजेस. और ये होता कैसे था? द कंटेंट स्टोर्ड ऑन द चिप can be erased by exposing it to the ultraviolet rays. Yes, this is very important. जैसे आपकी लेजर लाइट होती है बेटा, जब आप छोटे होते हो ना, तो आप एक लेजर लाइट से खेलते हो, बट वो हार्मफुल तो हैं, लेकिन वो डायरेक्टली अगर आप कहीं आई के अंदर और इस तरह से अगर किसी की आंख के अंदर ये चीज लग जाए तो तब वो हार्मफुल है, अदरवाइज वो हार्मफुल नहीं होता है. लेकिन जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, इतनी ज़्यादा इफेक्टिव भी होती हैं कि अगर वो रोम के ऊपर डाल दी जाएं तो रोम के अंदर जो भी डाटा है, वट एवर इनसाइड द रोम, इट विल इरेज्ड परमानेंटली एंड टोटली कंप्लीटली ऑल्सो. ठीक है. यानी जो कुछ भी हमारे पास है तो वो क्या होगा? वो इरेज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. तो एक बार डिलीट हमने कर दिया विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज. आफ्टर दैट यू कैन रीप्रोग्राम इट. दोबारा से इसके अंदर प्रोग्राम डाल सकते हैं. ठीक है. जैसे आजकल आप बड़ी आसानी से यू कैन रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम योर पेन ड्राइव बाय अ सिंगल कमांड. आपने सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट कर दिया, या उसको या फिर आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं. ठीक है. उसको एक बार पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने के बाद यू कैन स्टोर एनीथिंग इनसाइड इट, राइट. सो दिस प्रोसीजर कैन बी कैरिड आउट मैनी टाइम्स. इस तरह से आप उसको बार बार चेंज भी कर सकते हैं. लेकिन however the contents erasing and rewriting will eventually render the chip useless. It is not possible to retain the selective data
फ्रॉम द रोम। अब इसके अंदर इरेज तो हो सकता था, बट वी हैव सम प्रॉब्लम इन इट। अब क्या प्रॉब्लम आई? पहले तो क्या था कि एक बार जो पी रोम में डाल दिया, वी कांट चेंज इट, बट आफ्टर दैट वी इन्वेंट ईपी रोम। अब उसको इरेज भी किया जाने लगा, लेकिन इरेज करने के बाद भी अब प्रॉब्लम क्या आई कि मान लीजिए वी हैव 200 लाइन्स इनसाइड रोम and we have a problem only with 10 lines, and we want to change those 10 lines only, but that was not possible, because whenever you expose ultraviolet rays on the ROM, the entire 200 lines will erase। सारी की सारी लाइनें इरेज हो जाती थी कंप्लीटली, वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता था। इसीलिए बार बार करने से समटाइम्स दैट चिप, दैट रोम बिकम यूजलेस, वो खराब हो जाता था कई बार, ठीक है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि हम अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं हो सकता था कि सिर्फ वही 10 लाइंस को ही हम चेंज कर दें, 20 लाइंस को हम चेंज कर दें, बाकी की 180 लाइंस हमारी सेम रह जाए। नो, वी हैव टू reinstalled every line again, right? So that was the problem in EPROM. After that, to rectify this problem, rectify this error, to come up with this problem, we invent EEPROM, means electronically erasable programmable read-only memory. What was the difference between EPROM and EEPROM? Only one difference, that in EEPROM we can erase lines according to us, right? हम अपने अनुसार लाइंस को डिलीट कर सकते थे कि अगर हमें एक लाइन भी चेंज करनी है, देन वी कैन चेंज। ओके बेटा, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ रोम, ईईपी रोम। नेक्स्ट इज फ्लैश मेमोरी। व्हाट इज फ्लैश मेमोरी? It is specified type of EPROM which maintains the stored information even without a power source. It is a specific type of EEPROM which maintains the stored information even without a power source. क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो EEPROM था, यानी ये जो फ्लैश मेमोरी है, ये EEPROM का ही एक टाइप है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? which maintains द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इवन विदाउट अ पावर सोर्स। इसमें अगर ये ऑन भी नहीं हमने कर रखा है, तब भी हम इसको ऑन कर सकते हैं। और ये क्या क्या है अभी आपको पता लग जाएगा फ्लैश ड्राइव में किसे बोल रहा हूँ। द कंटेंट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड इनटू अ बिग सेक्शन, मेकिंग इट फास्टर देन द रेगुलर EEPROM. Flash memory being durable is majorly used in memory cards, mobile phones, MP3 players, etc. ये जो इतनी सारी चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं, जैसे मोबाइल फोन के अंदर जो मेमोरी होती है वो EEPROM के बेस्ड होती है। हम पेन ड्राइव को भी फ्लैश ड्राइव बोल देते हैं, राइट? तो जैसे पेन ड्राइव के अंदर एनी टाइम यू कैन स्टोर एनीथिंग, एनी टाइम यू कैन डिलीट समथिंग, एनी टाइम यू कैन make changes in the files. Same way in EEPROM also we can do all these things. तो ये जो पार्ट्स हैं जो नाम लिए हैं, जैसे मेमोरी कार्ड मोबाइल्स के अंदर आजकल नहीं यूज होता है, बट बिफोर समटाइम्स वी हैव दिस फीचर। ऐसा नहीं है कि मेमोरी कार्ड में सॉरी मोबाइल फोन्स में हम मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट nowadays the mobile phones are coming with a huge storage capacity, right? So that there is no need of extra memory card to be inserted into mobile, right? So memory card, मोबाइल फोन की भी जो स्टोरेज होती है वो ऐसी होती है। आप मोबाइल फोन के अंदर भी कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, है ना बेटा? सो और ऐसे ही MP3 प्लेयर, एक छोटा सा एक यू कैन सी, जैसे एक 2 इंच का ही एक वो डिवाइस सा होता है जिसके अंदर आप ईयर लीड लगा सकते हो, उसमें गाने स्टोर हो जाते हैं आपके, बिल्कुल छोटा सा होता है, माचिस की डिब्बी जितना, उससे भी छोटा होता है कई बार तो, है ना? और थिक भी होता है वो। आजकल नहीं यूज करते हम लोग, लेकिन पहले यूज होता था।
तो इसलिए उसके अंदर भी आप जब मर्जी चाहें उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके यू कैन इंसर्ट सम मोर सॉन्ग्स और यू कैन इरेज और यू कैन डिलीट. After that, masked ROM. What is masked ROM? It is a memory that in manufactured with its contents. This chip contains a software mask that is burned on the chip during the design phase of semiconductor manufacturing process. It is used in the computer system that require long-term sustainability. What it means? It means it is a memory. ये भी एक memory की part है that is manufactured with its contents. Whenever we means engineers, right? Whenever we installed, whenever we invent it or so not invented, when we manufactured it, जब हम इसको बनाते हैं तो ये इसके कंटेंट्स के साथ जो डाटा इसके अंदर स्टोर होता है उसके साथ ही होता है, साथ साथ, यानी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही इसके अंदर डाटा हम स्टोर कर देते हैं. दिस चिप कंटेन्स अ सॉफ्टवेयर मास्क दैट इज बर्न्ड ऑन द चिप ड्यूरिंग डिजाइन फेज ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. के जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, उसी वक्त इसके ऊपर एक मास्क यानी एक लॉक टाइप से लगा दिया जाता है. इट इज यूज्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम दैट रिक्वायर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी. इस मास्क के कारण, इस लॉक के कारण इसको ज्यादा समय तक यूज किया जा सकता है, यानी ये इसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, यानी ज्यादा समय तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ये ठीक रहेगा ज्यादा समय तक अगर इसको मास्क कर दिया जाता है तो. यानी फाइलें डाली और इसको लॉक कर दिया, यानी मास्क लगा दिया एक. ठीक है. एंड मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो, आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया. ओके. नेक्स्ट इज कैश मेमोरी. ये भी एक अलग तरह की मेमोरी है बेटा, लेकिन ये भी इंटरनल मेमोरी का ही पार्ट है, एक कैश मेमोरी. इसमें क्या होता है, वैसे तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसको आप कैचे भी पढ़ सकते हो, है ना, कैशे भी पढ़ सकते हो, लेकिन कैच यानी प्रोनाउंस्ड एज कैश, सो कैश बोला जाता है. Cache memory is a special high-speed memory that is also a type of physical memory which can either be inserted on a motherboard or made a part of the CPU. इसको मदरबोर्ड के अंदर इंसर्ट भी किया जा सकता है, जैसे रोम और रैम को हम लोग इंसर्ट करते हैं. रैम को तो अलग से किया जाता है, रोम ऑटोमेटिकली कंप्यूटर वालों की साइड से ही फिक्स होके आता है ना. बट कैश मेमोरी कैन बी यूज्ड इन बोथ वेज. इसको आप इंसर्ट भी कर सकते हैं और इसको परमानेंटली फिक्स भी कर सकते हैं मदरबोर्ड के अंदर. द सीपीयू यूजेस कैश मेमोरी टू स्टोर इंस्ट्रक्शन दैट आर रैपिडली रिक्वायर्ड टू रन प्रोग्राम. देखो बेटा क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है. जब भी हम कोई प्रोग्राम बार बार यूज करते हैं, मीन्स रैपिडली, ओके. सपोज आई एम इन द हैबिट टू यूज Zoom software nowadays so that I can take my class and you are also, right? तो Zoom का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो कैश मेमोरी क्या करता है, it stores the instructions and commands or commands which we use rapidly. या कंप्यूटर में उन सॉफ्टवेयर्स के पाथ मीन्स रास्ता, यानी वो कहाँ पे स्टोर्ड है कंप्यूटर के अंदर. तो इन सारी चीजों को कंप्यूटर क्या करता है, ये कैश मेमोरी क्या करती है कि अपने अंदर स्टोर कर लेती है. उससे हमें फायदा क्या रहने वाला होता है, एक तो जो इसके अंदर स्टोर हो जाता है वो लाइट जाने पे रैम की तरह खत्म नहीं होता है. ठीक है. तो क्या होगा कि सपोज में जूम का एड्रेस स्टोर हो गया, अभी जूम डी ड्राइव के अंदर है या सी ड्राइव में है और यहाँ पर स्टोर है जहां भी उसकी लोकेशन होगी. तो अगली बार क्या होता है कि जब भी मैं जूम के ऊपर डबल क्लिक करूंगा या आप अपने मोबाइल में क्लिक करेंगे, टच करेंगे जूम ऐप के आइकन को, तो वो पहले से ही उसका रास्ता स्टोर है कैश मेमोरी में. अगर कैश मेमोरी नहीं होगी तो क्या होगा कि हार्ड डिस्क में स्टोर होगा सब कुछ.
तो वो हार्ड डिस्क में ढूंढने में प्रोसेसर को टाइम लगेगा, राइट? इट विल टेक सम टाइम टू फाइंड आउट आवर प्रोग्राम। बट इफ इट इज स्टोर्ड इन कैश मेमोरी, तो पहले वो कैश मेमोरी में ढूंढेगा, उसके बाद वो हार्ड डिस्क से कनेक्टिविटी करेगा, राइट? तो जैसे ही उसको ये प्रोग्राम हमारा मिल गया, इमीडिएटली क्या होगा, वो वहीं से उसको ओपन कर देगा और इस तरह से हमारी जो स्पीड है दैट विल इंक्रीज। आपने देखा होगा जैसे ही आप कोई भी ऐप ओपन करते हैं या आप लैपटॉप में जब भी कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो इमीडिएटली इट विल ओपन, बट इफ यू ओपन एनी सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम और ऐसा सॉफ्टवेयर विच यू आर नॉट यूजिंग रैपिडली और रेगुलरली, then it will take some time to open. Why? Because it is not stored in cache memory. It always open from the hard disk, and when we open any software from hard disk, it will always take some time to open, right? But if it is stored in cache memory, यानी वो पहले से ही stored है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो काम कर देगा, वहीं से ही ओपन हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर यू। It is faster, its processing speed is faster. Why? Because it reduce the time to open, है ना? अदरवाइज क्या होगा, प्रोसेसर को हार्ड डिस्क में जाके ढूंढना पड़ेगा, तो वो टाइम जो हार्ड डिस्क की तरफ मूव करने का है एंड टू फाइंड आउट सॉफ्टवेयर, इट सेव्स दैट टाइम एंड डायरेक्टली इट ओपन आवर फेवरेट प्रोग्राम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल मेमोरी। आई एम जस्ट touching this topic today so that you can also read it by your own, and if we face any problem then we can discuss, right, in our next section. Second part is external memory. अभी तक जो हमने पढ़ा that was internal memory, that was stored inside the computer, and most probably we can't change it, right? Most probably जैसे कैश मेमोरी पर फिक्स हो जाता है, रोम होता ही फिक्स है, रैम को भी इंसर्ट करना पड़ता है, इनको हम फ्रीक्वेंटली वहां से हटा नहीं सकते, राइट? बट व्हाट अबाउट एक्सटर्नल मेमोरी? एक्सटर्नल मेमोरी इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये इसके और दो नाम है। क्या क्या नाम है? ऑक्सिलरी मेमोरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी यानी दूसरे नंबर पे, क्योंकि इंटरनल जो थे दैट वाज प्राइमरी मेमोरी, वो पहली मेमोरी थी, अभी है सेकेंडरी। इट इज नीडेड सिंस द मेन मेमोरी इज टेम्पररी, expensive and insufficient to store a huge amount of data. Why we need secondary memory? We need secondary memory because we know that our primary memory, जो हमारी पहली मेमोरी है या मेन मेमोरी जो है, रैम एंड रोम वगैरह सब, that was in temporary, एक तो कुछ समय के लिए होती है, एक्सपेंसिव महंगी भी होती है, एंड इनसफिशिएंट टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। और इतना डाटा स्टोर नहीं कर सकती वो, दैट कैन बी स्टोर्ड ओनली प्रोसेसिंग डाटा, राइट ना? वो इतना ज्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकती है जितना कि एक्सटर्नल मेमोरी कर लेगी, राइट? सो वी नीड एडिशनल मेमोरी, दैट इज एक्सटर्नल मेमोरी। व्हेनेवर रिक्वायर्ड, the data for processing get transferred from the secondary memory to the primary memory. Means कि the major storage is what? External memory. And whenever we required any processing or whenever we required any data for processing, then it automatically comes from secondary memory to primary memory, यानी हार्ड डिस्क से वो रैम में ट्रांसफर हो जाती है, राइट? Therefore, data has to be stored separately in a secondary storage device to make it permanent and accessible for a longer time. तो इस डाटा को जो आप प्राइमरी मेमोरी के अंदर काम उस पर करते हो, रैम में जो हम काम करते हैं कुछ, आफ्टर दैट वी हैव टू स्टोर इट, और जब उसको स्टोर कर देते हैं, सेव कर देते हैं, इट ऑटोमेटिकली स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी एज परमानेंट, ऑन द परमानेंट बेसिस, राइट? ताकि उसको लॉन्गर समय के लिए, और ये लॉन्गर समय कितना भी हो सकता है, देयर इज नो लिमिट। जब तक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क काम करती रहेगी, ये जो टाइम है, लॉन्गर समय है, ये हमेशा बना रहता है बेटा, ऐसे, ठीक है? आफ्टर दैट द स्पीड ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी इज मच स्लोअर देन दैट ऑफ द इंटरनल मेमोरी। द स्पीड ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी,
देखो हार्ड डिस्क वगैरह की स्पीड नो डाउट के कम होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि इफ वी फाइंड समथिंग इनटू द हार्ड डिस्क इट विल टेक सम टाइम, बट वी फाइंड समथिंग इन कैश मेमोरी देन इट विल टेक लेस टाइम देन हार्ड डिस्क। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल मेमोरी है वो थोड़ी सी इसकी स्पीड कम रहती ही है, बिकॉज इट हैज ह्यूज कैपेसिटी टू स्टोर। ये भी एक इसका रीजन है। द स्पीड ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी इज मच स्लोअर देन that of internal memory. Some commonly used external storage devices are number 1 hard disk, number 2 CD, then DVD, pen drive, etc. ये सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर भी ले लेते हैं। आप ये देखिए हमने एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर फ्लैश ड्राइव वाला जो हमने लिया था पेन ड्राइव उसको भी ऐड कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब हम दोनों तरह से इसको दोनों तरह की मेमोरी में इसको यूज कर सकते हैं, राइट बेटा। अब है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। This is a last topic which I will complete today and very fast. Look students, if you want to measure the storage of any hard disk or any pen drive or any storage device, you can say, then we have to use it, we have to measure it in some specific units. और ये यूनिट्स क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो first of all, nibble. What is nibble? Group of 4 bits. Suppose you write century, CENTURY, 7 digits, 7 alphabets are there. CEN3TURY 4. ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 7। तो ये 7 बिट हो गए अपने, ठीक है। तो ये 7 बिट हमारे स्टोर हो जाते हैं। तो 4 बिट जब हो जाते हैं तो उसके ग्रुप ऑफ 4 बिट को हम क्या कह देते हैं, निबल, ठीक है। बट निबल से काम नहीं चलता, वेरी स्मॉल यूनिट इज बिट, आफ्टर दैट 4 बिट्स इज इक्वल टू निबल, बट फाइनली वी हैव टू मूव ऑन बाइट्स, दिस इज बाइट। 8 बिट्स, group of 8 bits is called a byte, then kb is equal to 1024. Look students, in mathematics or in any other measurement we have 100 और 1000 और 10, ये हमारी चेंजिंग यूनिट होती है कि इसके ऊपर जाकर चेंज हो जाता है। बट इन कंप्यूटर्स वी यूज 1024, 1024, ठीक है। तो जैसे बाइट हो गया 8 बिट्स का, उसके बाद जितना चेंज होगा इट विल चेंज ऑन 1024, यानी 1024 बाइट इज इक्वल टू केबी, किलोबाइट। 1024 केबी इज इक्वल टू 1 MB यानी मेगाबाइट। 1024 MB is equal to 1 GB means gigabyte. 1024 GB is equal to TB, 1 TB means terabyte, and 1024 TB is equal to PB means petabyte, ठीक है। तो अभी तक हम मार्केट के अंदर हमारे अंदर स्पेसिफिकली TB तक का डाटा है। इट इज नॉट येट एनी कंप्यूटर विच हैज PB यानी पेटाबाइट, यानी अभी तक ये नहीं आया है। तो 1 TB, 2 TB, 5 TB तक हमारे पास कुछ इस तरह की स्टोरेज कैपेसिटी की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क होती हैं जो कंप्यूटर में लगती हैं, ठीक है। एक्सटर्नल हम एडिशनल यूज कर सकते हैं जस्ट लाइक अ पेन ड्राइव, उसका साइज बड़ा हो जाता है, राइट। तो इस तरह से ये हमारा मेजरमेंट यूनिट था। ओके स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर। in our next lesson we will go further. Till then I am unmuting you before the ending this meeting, and I am going to take the attendance of your all. So please be in the meeting so that your attendance can be marked, otherwise your absent will be marked, right? So I am going to unmute you all. If you have any kind of problem, any kind of doubt, you can ask. Now students, you all are unmuted, then you can ask any question. Okay, if there is no any question regarding today's lecture, then it's good. I am ending this meeting here, and please stay at home and be safe.